more. Hello student, welcome to computer class. This is the video for class 3. Today we read our chapter number 4, editing in MS Word. In this chapter we read so many things, for example instruction, starting of MS Word, screen elements, quick recap of keyboard, typing in MS Word, creating new document, and there is so many, how to save a document, how to create a document, how to check the spelling and grammar options, how can we enables or disables. Okay, this is the way. First of all, we have to know what is a MS Word. MS Word is an application software. It is also known as the word processing software. It used to create later document and for meetings and office work. MS वर्ड क्या है कि एक जगह है जहाँ पे हम लोग टेक्स्ट को लिखते हैं और उसको अच्छी तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमको टेक्स्ट को अच्छी तरह से डिज़ाइन करना है किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए या लेटर या डॉक्यूमेंट लिखने के लिए, तो हम क्या ओपन करेंगे? MS वर्ड। ये किस में मिलता है? MS ऑफिस में। ऑफिस पैकेज के साथ हमको MS वर्ड मिलता है। चलिए देखते हैं विंडोज 7 में कैसे इसको ओपन करते हैं। For open the MS Word in Windows 7, you have to go in Start button. There is the Start button. Okay. Then after clicking on the Start button दबाने के बाद All Program में जाना है, and then All Program में जाने के बाद हम लोग स्टार्ट बटन, देन ऑल प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, एक ऐसा ही लिस्ट खुल जाएगा। हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को क्लिक करेंगे और फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को क्लिक करेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ इतना करने के बाद वी हैव अ विंडो लाइक दिस, देन वी हैव अ विंडो लाइक दिस। व्हाट वी हैव? दिस इज द क्विक एक्शन टूल बार, टाइटल बार, commands tab, these are the commands tab, home, insert, page layout, the ribbons, or we can also say as the commands group. Office menu is here, work area, this is the work area, white area, status bar is in bottom, and document view is also on the bottom. Let's me move and see how we work in MS Word. So first of all, I have to open a MS Word in this section. How to open a MS Word, I want to show you. I am using Windows 8, I am not using the Windows 7. So for Windows 8 we are going in a start button area. For open this one, I am going to start button area. Now select the MS Word. By default MS Word is open, so this is the MS Word window for me. Actually I am using the Windows MS Office 2013, so this is the MS Word for 2013. Now we see what is the window criteria. These are the title bar, quick access toolbar, tabs group, commands group, file button. Okay, this is our status bar, and this is documentation area. Okay, this is the quick review of the window one more time. Now we see how we create a new document. First topic is how to create new document. For creating a new document, go in file, click on new, click the blank page. There is so many templates also available here, but I want to create a new blank page. So a blank page is created here. Now the second topic is how to write the text. The simple, you have the keyboard, there is so many alphabets and numbers, we can use it for type. So I am typing a letter, for example apple, or go in a new line. If I want to go in a new line, then press the enter and write Ram, and I want the space after the Ram, then click the space button, the very big button, the longest key in the keyboard, space button. Ram is a good boy. ये हो गया। नाउ आई वांट टू डिलीट समथिंग, अगर मुझे इसमें से कुछ इरेज करने से मैं बॉय को हटाना चाहता हूँ ओनली, देन सिंपली क्लिक द बैक स्पेस। ये इंटर के ऊपर में बैक स्पेस होगा, इसको क्लिक करेंगे और ये चला जाएगा।
फिर से लिखने के लिए मैं फिर से लिख देता हूँ। ओके, नाउ इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी, अब क्या है, मुझे पूरा का पूरा डिलीट करना है। पूरा डिलीट करने के लिए वी हैव टू सेलेक्ट करना सीखना जरूरी है। सो फॉर हाउ कैन वी सेलेक्ट अ टेक्स्ट, सिंपली क्लिक द लास्ट ऑफ द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है उसके लास्ट में जाके माउस से क्लिक करेंगे, हमारा कर्सर वहाँ पहुँच गया। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, आई एम गोना इंक्रीज द साइज ऑफ दिस वन। अब ये बड़ा हो गया। सिंपली क्लिक द लास्ट सेक्शन, मैंने लास्ट में बड़ा करके उसको ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट करने के लिए उसके बाहर में क्लिक करना है, कर्सर ब्लिंक करता रहेगा, लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करना है और उसके ऊपर ड्रैग करना है। मैंने किया, देन क्लिक ऑन द कॉपी ऑप्शन। नाउ सिंपली क्लिक द बॉटम साइड, पेस्ट वहीं होगा जहाँ पे कर्सर होगा, एज वी ऑल नो। नाउ क्लिक ऑन द पेस्ट हो गया। एक बार पेस्ट करने के बाद हम मल्टीपल टाइम, एक बार कॉपी करने के बाद हम लोग मल्टीपल टाइम उसको पेस्ट कर सकते हैं। अगेन फॉर चेकिंग द कट ऑप्शन, कट ऑप्शन कैसे होता है इसके लिए भी हम लोग फिर से एक बार सेलेक्ट कर रहे हैं इसको और कट में जाएंगे। कॉपी जब हम किए थे तो उसका ओरिजिनल कॉपी गायब नहीं हुआ था, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी वहीं रह गया था। लेकिन जब हम कट करते हैं तो ओरिजिनल कॉपी वहाँ से गायब हो जाता है। तो फॉर वो चला गया क्योंकि हमने उसको कट किया था। कट मीन्स काट दिया था। नाउ वी क्लिक ऑन द पेस्ट ऑप्शन। यू सी, कट करने के बाद भी हम लोग मल्टीपल टाइम पेस्ट कर सकते हैं। Now we see our undo and redo option. For undo and redo option, I am deleting the boy. मैंने बॉय को हटाया है। अब मैं undo को दबाता हूँ और वो वापस आ जाता है, ठीक है। जितने बार दबाएंगे वो बैक होता जाएगा, जो भी प्रोसेस हम किए होंगे वो सारा बैक होता जाएगा। undo मतलब बैक योर वर्क और redo मतलब रिटर्न योर undo वर्क। undo वर्क को वापस से रिपीट करने के लिए redo होता है और undo होता है किसी भी काम को जो भी हम पहले से कर रहे हों उसको बैक करने के लिए, ठीक है। सो दिस इज द वर्क ऑफ undo एंड दिस इज द वर्क ऑफ redo, ठीक है। सो नाउ यू हैव, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड undo एंड redo। Now we see one more thing, how to check the spelling and grammar of anything. So for this one I am writing a wrong spelling of ball. Okay, I am writing a wrong spelling of ball. Now I want the real I want the correct spelling. So for doing this thing, go here, simply click the right mouse button and choose the ball और बोल्ड एनीथिंग विच यू वांट। जो भी हमको चाहिए था मैंने चूज कर लिया। और अगर आपको इस तरह के सिचुएशन से बचना है देन सिंपली गो इन रिव्यू टैब एंड चेक द स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन। मैं यहाँ चला गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन को मैं जाके ओपन करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जब भी लिखता हूँ कोई भी गलत वर्ड, ठीक है, तो ये अपने आप ऑन हो है क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक ऑन रहता है, तो ये वहाँ पे ऑन ही है। चलिए, okay, so this is the way how can we use the spelling and grammar option. Now the last point is now the next point is the preservative options or the okay, I am writing sun here. Now I want to know the synonyms of sun. मुझे synonyms चाहिए sun का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सन लिखा है उसको हमने सेलेक्ट किया है, देन वी सिंपली क्लिक द राइट माउस बटन ऑन हिम ऑन गो इन ट्रांसलेट ऑप्शन। मैं यहाँ गया हूँ और यहाँ पे मुझे उसका सारा ऑप्शन मिल जा रहा है। यहाँ पे मैं जो चाहूँ वो चूज़ कर सकता हूँ सन के लिए, ठीक है। इंग्लिश, फ्रेंच, जिसमें भी मुझे वो वर्ड चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। जैसे कि मैं फ्रेंच में उसका वर्ड ढूंढना चाहता हूँ, सन को फ्रेंच में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाता है, ठीक है। We can't find it actually, internet is not working, so it's can't find.
Okay, this is the way how can we use this one. Now synonyms option. Okay, there is a synonyms option, we can use it. Okay, synonym option is here, is a teaser option, it's you have to read it in your book. तो किसी भी चीज़ को हम लोग लिखेंगे और उसके हिसाब से हम लोग ढूंढेंगे. मैंने वाटर लिखा है, मुझे वाटर का टीजर चाहिए, तो इसके लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट माउस बटन दबाऊंगा. एक्चुअली मैं वाटर का W बड़ा करना होगा. नाउ मैं वापस यहाँ जाता हूँ, राइट माउस बटन दबाया, मैं सिनोनिम्स में चला जाता हूँ. नाउ मुझे वाटर का बहुत सारा सिनोनिम्स मिल जाता है, रिवर, लिक्विड, ओके, H2O. सो ये उसका सिनोनिम्स है जो हमको टीजर में मिलेगा. अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो हम लोग सीधा टीजर में चले जाएंगे और यहाँ हमको उसका बहुत सारा सिनोनिम्स मिल जाएगा. ओके, now we see how to save a document. For saving a document, you have to simply go in a file tab, choose the save option. If you अगर हम अपने डॉक्यूमेंट को जो भी हम लोग लिखे हैं उसको हम पहली बार सेव कर रहे हैं तो सेव और सेव एज चूज करने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम उसको पहले से सेव किए हुए होते हैं तो दोबारा से अगर हम उसमें कोई चेंजेस करते हैं तब सेव ऑप्शन चूज करने पे उसमें जो भी चेंजेस किए होते हैं वो सेव हो जाता है और सेव एज ऑप्शन करने से वो फिर से रीनेम या फिर दूसरे नाम से सेव होता है. तो चलिए हम लोग पहले सेव ऑप्शन को चूज करते हैं. ठीक है, ध्यान देना है. अब हम यहाँ पे लोकेशन चूज कर रहे हैं. लोग हमने सेव ऑप्शन को क्लिक किया था और यहाँ खुला क्या है, सेव एज. यानी कि आप फर्स्ट बार अगर हम किसी को सेव कर रहे हैं और हम जो भी दबाएंगे हमको सेव एज ही मिलेगा, चाहे हम सेव दबाएं या सेव एज दबाएं. तो मैंने यहाँ पे सेव एज सेव दबाया था, सेव एज मिला. मैं सेव बटन को दबाता हूँ और ये सेव हो गया. चलिए पहले इसको क्लोज कर देते हैं. इसको क्लोज कर दिया मैंने. अब मुझे फिर से उसे ओपन करना है तो फिर मैं उसे ओपन कैसे करूँगा, मैं फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और यहाँ से अपना एप्पल को चूज कर लूँगा. मैंने एप्पल नाम से उसको सेव किया हुआ था, ये हमारे मिल गया. वही डॉक्यूमेंट है, हाँ वही है. ओके, नाउ दिस इज द वे हाउ कैन वी ओपन. Now the close a document, how can we close a document? For closing, before the closing a document, I want to show you how can we print a document. For printing a document, go in a file button one more time, choose the print option. Okay, choose your printer. अपना printer choose कर लेंगे. जैसे मैं अपना printer choose कर रहा हूँ यहाँ पे, simply click here and choose your printer. I am choosing my printer. Qt PDF Writer is my printer, so I am choosing this one. ये करने के बाद सिंपली क्लिक ऑन द प्रिंट. मैंने प्रिंट पे दबा दिया, ये प्रिंट के पास जाएगा और प्रिंट हो जाएगा. नाउ माय प्रिंटर इज ऑन, ओनली सिंपली क्लिक ऑन द सेव बटन एंड इट्स प्रिंट नाउ. सो दिस इज द वे हाउ कैन वी सेव अ वर्क. एंड द लास्ट टॉपिक इज हाउ टू एग्जिट द MS Word. देन सिंपली क्लिक द फाइल बटन एंड चूज द क्लोज ऑप्शन. Now your MS Word is closed. Now thank you for watching this video.